Praise God. I'm glad that I'm here to share the word of God with you this morning. मैं उत्साहित हूँ कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पेश करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। And I want to thank Pastor Binu and his family. मैं पासवान बिनू और उनके परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ। Today we miss them here. आज हम उनको मिस कर रहे हैं हमारे बीच। But wherever they are, let God minister through them and bless them. लेकिन जहाँ कहाँ पर भी वो रहेंगे, वहाँ पर परमेश्वर उनके द्वारा सेवकाई को करने पाए। Also want to thank Pastor Freddie who been texting me and encouraging me and praying for me. और मैं पासवान फ्रेडी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो बीच-बीच में मुझे टेक्स्ट कर मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। Love you, Pastor. God bless. Also want to thank all the leaders of this church. मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा और ये सारे लीडरशिप को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। And I want to thank everyone who is sitting here और आज to receive from the Lord. और आज सवेरे के सामने मेरे सामने जो यहाँ पर पेश है उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो परमेश्वर से पाने के लिए यहाँ पर तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। If anyone here waiting for the Lord to move in your life, believe this is the season. God will move into your life. अगर यहाँ पर कोई उपस्थित है जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में काम करे तो ये वो समय है जहाँ पर परमेश्वर आपके बीच काम करने वाले हैं। I'm reminded of a wonderful song which I learned in the old days, and it touched me very deeply, and I want to sing it for you and join with me. और पुराने समय में जो है एक गीत जो मुझे पसंद आई थी और मैं आपके सामने आज गाना चाहूँगा। Hallelujah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like the eagle in the sky. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Hallelujah. This is a promise you can see in the book of Isaiah. ये यशायाह के पुस्तक में हम इस वायदे को देख सकते हैं। They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like the eagle in the sky. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait down on my knees till in your own good time you will answer my plea. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like the eagle in the sky. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Hallelujah. Give a big clap to the Lord. Hallelujah. Today God has put me a word to share with you. आज सवेरे के समय में परमेश्वर ने एक वचन दिया है आपके बीच बांटने के लिए। That is from the book of Epistle, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और वो पहले थिस्सलुनीका का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 18वें वाक्य से है। It says, in everything give thanks, for this is the will of God
concerning you in Christ Jesus. और इस प्रकार ये कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Based on this verse, I want to share few things so that we'll be encouraged and enriched by the word. और ये वचन जो है, इस वचन से कुछ चीजें मैं बांटना चाहूंगा जिससे हम सब आशीषित हो। If you are the person who taking note, I want to give a few reference which is so important regarding thanksgiving. अब अगर आप नोट करने वाले व्यक्ति हो तो मैं कुछ वचन आपसे बांटना चाहूंगा जो धन्यवाद के बारे में कहती है। Number 1, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says, give thanks in all everything, for this is the will of God in Christ Jesus for you. उनमें से पहला ये है, पहला थिस्सलुनीकी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वाक्य, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। I was going through some different translation and one of the translations says, give thanks in all circumstances. और मैं कई परिभाषाओं को जो है परीक्षित कर रहा था और उनमें से एक परिभाषा इस प्रकार कहती है कि अपने सारे हालातों में जो है परमेश्वर का धन्यवाद करो। So everyday thanksgiving is not based on our circumstances, but in spite of every circumstances. और हमारी धन्यवाद जो है सिर्फ कुछ हालातों में जो है बसती नहीं है, लेकिन सभी हालातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना Not चाहिए। that when everything goes smoothly, also when everything seems not that easy. और जब सारी चीजें आसानी से चलती है उसी समय धन्यवाद करना नहीं होता, लेकिन जब कठिन चीजें भी आती है उसका सामना करते हैं उस समय भी धन्यवाद करना है। Ephesians chapter 5 verse 20 says, इफिसियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 30वां वाक्य इस प्रकार कहता है, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और तीसवां वाक्य इस प्रकार, इसलिए कि हमें देह है हमें सभी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करना There है। is a word is particularly mentioned always. हमेशा वहां पर दिखाई देता है। So everyday thanksgiving is not an occasional feeling और or spoken word, it is an always attitude. और दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना वो सिर्फ आदत बनाना नहीं है, लेकिन वो हमारी एक आदत बननी है। So 1 Chronicles chapter 16 and 34 says, oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. और पुराने नियम में ऐसा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कर दो क्योंकि वो भला है। And there is a word, is so good. और वहां पर हम देखते हैं कि वो Is परमेश्वर, God good to you? क्या परमेश्वर आपके लिए भला है? So everyday thanksgiving is not determined by the good or the bad हमारे of our situation, of our circumstances, चाहे but it is rooted in the goodness of the Lord. हमारी धन्यवाद जो है हमारे हालातों के भला होने पे या ना होने पे नहीं होता, लेकिन हमारा धन्यवाद हमेशा परमेश्वर के भला होने पे होता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 57 says, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों का पुस्तक इस प्रकार कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। So everyday thanksgiving does not depend on worldly achievement. और दिन प्रतिदिन हमारा धन्यवाद जो है जो चीज हम ताबे में लेते हैं उस पे निर्भर नहीं रहता। It arises from the eternal victory already that God given to us. और हमारा धन्यवाद हमेशा वो अनंत काल का जो जीत है उस पे निर्भर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that already that we are victorious? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जयवंत हैं? Are you happy about it? Could you please raise your hand and thank the Lord for the victory that is already given to us? Hallelujah. हालेलुया। So what is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? That we give thanks in everything. कि हम सभी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। Now, when we study the life of Joseph and when we study the life of David, और जब हम यूसुफ के जीवन को और दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं, no matter what they were going through, but they always remained in the plan and the purpose of God. चाहे वो कोई भी हालत से क्यों ना गुजरे, वो हमेशा ये चीज का मायना रखते थे कि वो हमेशा परमेश्वर की योजना में निर्भर रहते थे। To always maintain an attitude of thanksgiving and be thankful to God because
God knows everything. और हमेशा परमेश्वर को एक धन्यवाद के जो है हृदय से उनका जो है अपने स्वरूप में ले आना वो इसलिए निर्भर होता है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं. God knows your end from the beginning. परमेश्वर हमारे अंत को जो है शुरुआत से जानते हैं. God knows your end from the beginning. परमेश्वर हमारे अंत को शुरुआत से जानते हैं. Hallelujah. As I surrender myself, as I go through some situation that I may not desire, that I may not enjoy, that I may not want to go, still that you need to thankful because that is a process. जब मैं किसी हालत से गुजरता हूँ जो मेरी इच्छा के विपरीत होता है, जो ऐसी हालत है जो मैं गुजरना नहीं चाहता, उस समय भी मुझे धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर जो है एक प्रोसेस से मुझे ले जा रहे हैं. Yes, I said process, it's a process. और वो परमेश्वर एक प्रोसेस से मुझे ले जा रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. If you are a person going that process, give thanks to God. अगर आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर वो प्रोसेस से ले जा रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करो. But when I yield myself to those situations and those circumstances, and when I begin to give praise and thanks unto God, जब मैं वो हालातों से गुजरता हूँ और परमेश्वर को मैं हमेशा धन्यवाद करते रहता हूँ, knowing that my God is in charge of my life, ये जानकर कि परमेश्वर मेरे जीवन के जो है पूरे ताबा को ले चुके हैं, my God is busy molding me and making me और मेरे परमेश्वर जो है व्यस्त है मुझे बनाने के लिए, मुझे जो है मोल्ड करने के लिए, to be a person He intended for me to be, ऐसा एक व्यक्ति मुझे बनाने के लिए जो वो चाहते थे मैं बनूं, that I can be more fruitful the days. ताकि मैं और फलदायक बनता रहूं. Hallelujah. हालेलुया. What God planned in my life will come to pass. If not today, it will certainly come to pass tomorrow. जो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए है वो आज या कल जरूर जो है वो पूर्णता में पहुंचेगी. So thanksgiving is a weapon. और धन्यवाद करना वो एक अस्त्र है. Are you able to give thanks unto God? क्या परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? How can I give thanks when I go through struggle? मैं परमेश्वर का धन्यवाद किस प्रकार कर सकता हूँ जब मैं कठिन हालातों से गुजर रहा How हूँ? can I begin to praise when I see everything is going upside down? मैं किस प्रकार परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ जब मैं मेरे जीवन में देखता हूँ सारे चीजें उल्टे फुल्टे हो रहे हैं? Many of you may be asking, why Lord it is to me? आपसे कई लोग पूछते होंगे कि परमेश्वर क्यों मैं? Why Lord it is to my family? परमेश्वर क्यों मेरे परिवार के साथ ऐसा होता Why है? Lord it is to my job? क्यों परमेश्वर मेरी नौकरी के साथ ऐसे होता है? Lord, why it is to my ministry? परमेश्वर ये मेरी सेवकाई के लिए ऐसा क्यों होता है? Hallelujah. Please understand that's just a process where God is going to take you to a higher levels. प्रियो, इस बात को जानने की कोशिश करो कि ये एक प्रोसेस है जो परमेश्वर आपको ले जा रहा है ताकि वो पूर्णता में पहुंचे. Please turn your Bible to Hebrews chapter 13 verse 15. इब्रानियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 15वां वाक्य देखेंगे. Bible says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hebrews 13:15. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों के फल को जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें. How long you have to praise? कब तक, कितने लंबे तक हमें How long परमेश्वर की you have महिमा to करनी? give thanks? कितने लंबे तक हमें परमेश्वर की Bible धन्यवाद says करने हैं? continually. वचन कहता है कि हमेशा. When everything goes right, when everything goes wrong. जब सारी चीजें अच्छी होती है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, जब सारी चीजें बुरी होती है तब भी परमेश्वर का When धन्यवाद I करो. lose things, when I gain things. जब मैं अपनी चीजों को खोता हूँ, जब मैं अपनी चीजों को पाता हूँ, When I'm joyful and when I'm sorrowful. जब मैं खुश हूँ और जब मैं दुखी हूँ, In all circumstances, God wanted us to be thankful और unto वो Him. सारी हालातों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. It doesn't say for some time. और वो इस प्रकार नहीं कहता कि कुछ समय में, It doesn't say for 1,000 times. वो इस प्रकार भी नहीं कहता कि करीब But 1000 it बार. says continually give thanks and offer it as an sacrifice. लेकिन वचन कहता है कि हमेशा वो धन्यवाद के जो है अर्पण को जो है बलिदान करते रहो. Bible clearly says offer it as a sacrifice. और वचन अच्छी तरह से कहता है कि उसको एक बलिदान के तौर पर पेश Do करो. you know sacrifice means? क्या आप जानते हैं बलिदान क्या होता है? It will cost you something. वो आपको कुछ चीजें आपको खोना It will पड़ता है, cost you something. वो आपके लिए महंगा पड़ता है. When I don't feel like giving thanks, I begin to give thanks
costing me something. और जब मैं धन्यवाद नहीं करना चाहता और जब मैं धन्यवाद करता हूँ तब मेरे से कुछ चीजें मैं खो लेता हूँ, Because everything that is in me yelling at me, saying, "Are you crazy?" जब मैं सारी चीजों को देखता हूँ और वो मेरे खिलाफ चिल्ला कर कहते हैं कि क्या तुम जो है दिमाग से हटे हुए हो, Hallelujah. It doesn't make sense to say thanks at times. और उस समय में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, Doesn't seems favorable to give praises unto God. और उस समय मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। When things have not gone the way that I desire, जब चीजें ऐसे मोड़ ले लेती है जो मेरी इच्छा के विपरीत होता है, it didn't go the way I prayed for, जब वो ऐसे मोड़ ले लेता है जो मैंने प्रार्थना की नहीं थी, it didn't go the way that I planned, जो ऐसे रास्ते में नहीं जाता जब मैंने अपनी योजना के how अनुसार, can give thanks? और तब भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद I करता don't हूँ, care. I still give thanks to तब God. भी मैं सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, Hallelujah. Hallelujah. I still give thanks to God. मैं तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Jesus. You might be going through very tough phase of your life today. हो सकता है कि आप अपने जीवन के सबसे कठिन रास्ते से अब चल रहे होंगे, But God, the Holy Spirit, speaking to us from past many weeks, be strong and courageous. लेकिन परमेश्वर का वचन पिछले कुछ सप्ताह से हमसे बात कर रहा है कि हम परमेश्वर में जो है बल को प्राप्त करें, The Lord is with you wherever you go. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है जहां पर भी हम जाते हैं। I love that scripture portion because it is in a circumstances where Joshua has missed and lost his leader Moses. He cried out and said, "Lord, I'm alone." और वो वायदे के वचन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा एक समय है जब यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ, How shall I walk? How shall I walk? और मैं कैसे आगे बढ़ूं, How shall I do things? मैं कैसे अपने चीजों को करूं। Thus far I had a leader to whom I can follow. अब तक मेरे पास एक जो है नेता था, जो मूसा था मेरे पास, I जिसके become साथ मैं, alone. अब मैं अकेला हो चुका I हूँ, become अब alone. मैं अकेला हो चुका हूँ। And God came near to Joshua. और अब यह परमेश्वर यहोशू के पास आता है Joshua, my son, और वो कहता है कि यहोशू मेरे बेटे, my servant Moses died. मेरा जो है मेरा सेवक जो मूसा था वो खत्म हो चुका है, But I did not die. I am alive. लेकिन मैं आज भी खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं आज भी जिंदा परमेश्वर हूँ। My servant Moses died that I am with you. मेरा सेवक जो मूसा था वो मर चुका है, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। I will take you through. मैं तुम्हें जो है आगे चलाऊंगा, I will take you through. मैं तुम्हें आगे चलाऊंगा। You need not worry. Wherever you go, I will make my presence very real to you. आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर भी आप जाओगे वहां पर मैं अपनी हुजूरी को जो है You may आपसे see महसूस करवाऊंगा। mountains and valleys, but I will be there. आप जो है गहराई से गुजरते रहेंगे, लेकिन वहां पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। You will see people around. Sometimes you will be alone, but I will be there. कई बार अपने आसपास देखकर तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन वहां पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। You will be see a season of favor. You may see a season where you feel everything seems like a wilderness. I will be there. और तुम ऐसे हालातों का सामना कर सकते हो जब जहां पे तुम्हें सिर्फ मरुस्थल दिखाई देगा, लेकिन Hallelujah. उनके बीच में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Remember, church, it is God who allowing us to go through the process. भाइयों, ये बात को ध्यान दीजिए कि ये परमेश्वर ही है जो हमें इस रास्ते से ले जाते हैं। During your wilderness process, you may ask, "Why, Lord? Why, Lord?" Once David cried out to God, saying, "Why, Lord, you've forsaken me?" आपके मरुस्थल के हालात में आप परमेश्वर से चीख कर कहेंगे कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। ऐसे ही दाऊद ने भी कहा था। In Isaiah chapter 44, it says, "Can a nursing mother forget a child? Even if she does, I will not forget you." यशायाह का पुस्तक इस प्रकार कहता है कि क्या एक माता अपने गोद में जो है जन्मे एक बच्चे को भूल सकती है? अगर वो भूल भी जाती है तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। God never forgets you. You are not one in crowd. परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, तुम सिर्फ झुंड में से एक व्यक्ति नहीं हो। Your friends might forget you because you are one of the crowd. आपके दोस्त आपको भूल सकते हैं क्योंकि आप उनके लिए कई मित्रों में से एक Your व्यक्ति है। boss might forget you because you are one of the many. आपका बॉस आपको भूल सकता है क्योंकि वो आप कई एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय आप हो। Your parent might forget because of many children. आपके माता पिता आपको भूल सकते हैं क्योंकि आप कई बच्चों में से एक बच्चे हो। Your colleague might have forgotten you because you are one of the many. आपके कॉलीग जो है आपको भूल सकते हैं क्योंकि आप उनमें से सिर्फ एक हो। But God says you are not one of the many. लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप
वो झुंड में से एक You नहीं हो। are the one he sent Jesus. और वो कहता है कि मैं वो यीशु मसीह को भेजा ताकि मैं तुम्हें जो है वहां पर बचा सकूं। You are the one he died for. और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके लिए यीशु मसीह मारा गया। You are the one whom loves you dearly. और वो तुम ही वो व्यक्ति हो जिससे परमेश्वर बहुत खास प्रेम रखते हैं। God says you are a perfect one. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पूर्ण व्यक्ति You are a perfect one. तुम एक परफेक्ट व्यक्ति हो। I did everything for you. मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। How many of you believe that God is doing everything for us? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया है? Hallelujah. Wilderness experience is not the desirable और one. मरुस्थल की हालत जो है बहुत ही पसंददायक नहीं होती। But remember, it is the wilderness where you will see the hand of God. लेकिन ये बात को याद रखिए कि वो मरुस्थल की हालत वो ही होगा जब आप परमेश्वर की हुजूरी I को am महसूस always करेंगे। reminded of a verse from Deuteronomy chapter 8 verse 15 following. मैं ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में जो है ये बात हमेशा मुझे याद आती है। Bible says, वचन कहता है, do not forget that he led you through the great and terrifying wilderness और वचन with his poisonous snakes and scorpions, where it was so hot and dry. He gave you water from the rock. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestor. He did this to humble you and test you for your own good. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 15वां वाक्य इस प्रकार कहता है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विश्व वाले सर्प और बिच्छू है, और जहां जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मित्रों मन्ना खिलाया, जिससे तुम्हारे पुरखों जानते भी नहीं थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए। So end is very important. उसका अंत बहुत ही So महत्वपूर्ण है। end is very important. उसका अंत बहुत ही Bible महत्वपूर्ण है। says in the end it might go well with you और उसका अंत इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे साथ जो है भलाई हो, for your own good. क्योंकि वो तुम्हारे भलाई के लिए थी। How many of you acknowledge that God does everything for my own good? आप में से लोग कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो भी आपके साथ होता है वो आपके भलाई के लिए परमेश्वर करता है। Today's pain and agony and sorrow and struggles will turn in favor of me, and it is for my own good. आज की दुख और मुसीबत जो है मेरे भलाई के लिए जो है टर्न होगी, और किसी दिन मेरे साथ भला होगा। Remember, in this process there are scorpions and there are snakes. और इस बात को याद रखिए कि इस यात्रा में जो है कई विष वाले सर्प भी है, It's not that easy walk. और वो चाल चलन बहुत ही आसान नहीं है, This journey is not that easy. और ये यात्रा जो है बहुत आसानी से Thank नहीं है। God the grace of God is showered upon our lives so that God will take us through. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसकी कृपा जो है हमारे ऊपर होती है ताकि हम इस यात्रा में जारी रखें। Snakes are there to bite you वहां पे जो है सर्प वाले विष देख सकते and हैं kill जो- you ताकि वो आपको काट and कर खत्म destroy you. आपको खत्म कर सके, But God knows it. लेकिन परमेश्वर वो जानता God है। knows it. There is a snake. परमेश्वर जानता है कि वहां पर There is सर्प है, scorpions in the way. वहां पे खतरनाक जंगली जानवर There है, is वो जानता है। dark period of life in the way. और वहां पे और खतरनाक चीजें हैं, There परमेश्वर is जानता है। time of struggle on the way. और वो रास्ते में आपको कठिनाई है, वो भी God परमेश्वर जानता knows that you have to go through stuff and struggles. है। और परमेश्वर ये सब कुछ जानता है कि आपको वो कठिनाई का सामना करना है, But you need to know one thing, that God will turn everything in favor of you. लेकिन ये बात को याद रखिए जो भी होता है आपके साथ वो सारी चीज आपके भलाई के लिए परमेश्वर बदल सकता है। Satan and the evil and the devil doesn't want us to go forward and be happy. और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़कर जो है खुश रहे, God already promised Israelites a लेकिन land which is cold, where you will see milk is flowing, honey is flowing. और परमेश्वर ने जो है इजराइली लोगों के साथ वायदा रखा था कि वो तुम्हें ऐसे देश में ले जाएगा जहां पर दूध और मध जो है वहां पर बहती रहती है। And with your ability, with your education, with your money, with your position, you cannot और तुम्हारे जो है, achieve the blessing of God. और आप कभी भी जो है अपने काबिलियत पे, अपने पढ़ाई पर, अपने नौकरी पर जो है अपने परमेश्वर की योजना में कभी पहुंच नहीं सकते। You and I need to depend upon God. आप और हमको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना है। Bible says, Deuteronomy chapter 8, verse 16, God will test us for your own good. और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 16वां वाक्य इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा ताकि वो हमें भला महसूस करवाए। And when you go through struggles, जब तुम वो कठिनाई से गुजरते हो, God wanted us to know how you are
walking in that process. परमेश्वर जानना चाहते हैं कि आप उस प्रोसेस में किस प्रकार चलते हो. Because Deuteronomy chapter 8 verse 3 says, God will test you to prove and to see your character. क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा वाक्य इस प्रकार कहता है कि उसने तुझे नम्र बनाया और जो है तुम्हारे कैरेक्टर को पहचाना. God wanted to test us, our character. God wanted to test our mindset. परमेश्वर हमारे दिमाग को जो है जानना चाहता है, वो हमें परखना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. What I'm going to do, I will going to sacrifice the thanksgiving. और वहां पर जो है मैं अपने धन्यवाद को जो है बलिदान के तौर पर पेश करूंगा. This is a spiritual a law, a spiritual principle. और ये हमारी जो है आत्मिक सीख है. यहाँ पर My attitude of thanksgiving is it's causing something to happen in heaven. और जब मेरा ये धन्यवाद का स्वभाव मेरे अंदर से आता है तब स्वर्ग में कुछ काम होता है. He begins to move closer to you. और परमेश्वर जो है स्वर्ग हमारे करीब आने की कोशिश करता है. If you see the book of Chronicles, we read about Jehoshaphat. जब आप इतिहास की पुस्तक में यहोशुआत के बारे में सुनते हो, When he was facing an impossibility, जब वो एक असंभव चीज का सामना कर so रहा था many armies rised against him. और बहुत सारे जो है दुश्मन जो है उसके खिलाफ खड़े हो He गए began to pray. और अब वहां पर प्रार्थना करने शुरू करता He है. assigned the people who is a musicians to stand in the front. और वहां पर जो है अपने म्यूजिशियंस को आगे खड़कर वो पूछने लगता He है gave them a assigned task. और उन्हें जो है ऐसे एक टास्क देता है. He said, you start singing and give thanks unto और Lord. उन्होंने अपने गीत गाने वालों से कहा कि तुम अपना गीत गाना शुरू करो, अपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू करो. Second Chronicles chapter 20-21 says, give thanks to the Lord, his faithful love endures forever. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो. You are in uncertain days where you don't know whether you will win the battle or lose the battle. तुम एक ऐसे समय में हो जहां पर ये नहीं जानते कि तुम ये लड़ाई को जीतने वाले हो कि हारने वाले हो. You don't know how big the army is all about, but you come still and praise unto God and start giving to the Lord. तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दुश्मन की सेना कितनी बड़ी है या वो कितने शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो. You know, Bible says later as you read the scripture and it says the battleground turned into changed. The name all about changed and everything is changed. और वो वचन में आगे हम पढ़ते हैं कि वो लड़ाई का जो हालत जो है पूरी तरह से बदल गया और इसके फेवर में आ गया. And today it's still called as a valley of blessing. और आज भी वो जो है आशीष की गहराई को कहलाते हैं. Second Chronicles 20 verse 26 says that place called as the valley of blessing. दूसरा अध्याय 20वां अध्याय दूसरा इतिहास इस प्रकार कहता है Giving कि thanks will bring blessing. और जो भी धन्यवाद करते हैं वहां पर When you आशीष पेश start आता है. begin praising unto God, it will bring blessing unto your life. जब आप परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करते हो तो वहां पर परमेश्वर का आशीष आप पे उंडलता है. I said thanksgiving is a powerful weapon. और मैंने कहा कि धन्यवाद करना ये बहुत ही एक अच्छा अस्त्र है. Not I deserved his help. ये नहीं कि मैं अपने परमेश्वर की मदद को जो है मदद के लिए काबिल Not that था. I have earned his help. और ये भी नहीं कि मैं परमेश्वर की मदद को जो है कमा चुका हूँ. Because of his faithful love. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी ईमानदारी के कारण मैं इसको आजमा रहा Because of his mercy. हूँ. परमेश्वर के कृपा के कारण That we will see God is moving in our life. और इसी के कारण जो है हम परमेश्वर को हमारे बीच में काम करते हुए देख Lord, I सकते हैं. don't deserve it. परमेश्वर मैं इसके काबिल नहीं हूँ. I don't deserve the help from you. मैं ऐसा कोई मदद आपसे जो है कमा नहीं सकता हूँ. Because you know me, who I am and what I am. क्योंकि परमेश्वर आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ. Hallelujah. Even in the terrifying situation, even in the difficult situation, when you start begin giving thanks unto God, God will start working in your life. अपने जीवन के डरावने हालातों में भी जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करने की शुरुआत करते हो तो परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में आप जो है Habakkuk देख सकते chapter हो. 3 verse 17 says, हबक्कुक का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 17वां वाक्य इस प्रकार कहता है. although the fig tree shall not blossom, neither the fruit in the wine, the labor of the olive shall fail, and the field
beast shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold. And the cattle barns are empty. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. और वहां पर कहता है कि चाहे सारी चीज आपके खिलाफ क्यों ना हो, वहां पर भी मेरी हुजूरी तुम्हारे साथ रहेगी. The God of my salvation. और परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता The है, Lord is my salvation. परमेश्वर मेरा उद्धार करता The है, Lord is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक The है, Lord who provides. परमेश्वर जो मेरी मदद करता है, जो The मेरे लिए, Lord, the one who delivers me. और परमेश्वर जो मेरे लिए जो है वहां पर छुटकारा He is देता a है, great deliverer. और वो मेरा सबसे बड़ा छुटकारा देने Lord, वाला I है. know you will open the which परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे the लिए, doors which is being closed. तुम मेरे लिए वो दरवाजों खोलेंगे जो मेरे लिए बंद है. Lord, I know you will make the barren to shout with joy that the barren shall have more children than the other one. और परमेश्वर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसे परमेश्वर हो जो घर में जो है कोई फल देखता नहीं, उनके लिए जो है अधिकार जो है बच्चों को देकर तुम उन्हें खुश करते हो. How can I going to win the favor of God? मैं कैसे एक परमेश्वर की कृपा दृष्टि को जो है कमा सकता हूँ. With this principle, you can win the favor of God आप इस बात को करेंगे तो आप परमेश्वर की by कृपा दृष्टि giving को, thanks unto God परमेश्वर को धन्यवाद कर कर, all the time, हमेशा every time, हमेशा giving thanks unto God. परमेश्वर का धन्यवाद कर कर. So thanksgiving is a weapon. और धन्यवाद करना वो एक वेपन है. Thanksgiving is a spiritual weapon. धन्यवाद करना वो एक आत्मिक वेपन है. It is easy to give thanks when things goes the way that you wanted to go. ये बहुत ही आसान है परमेश्वर का धन्यवाद करना जब आपके हिसाब से जो है चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ती है. But you know, when you feel depressed, when you go discouraged, when you feel hopeless, it is not that easy to give thanks. लेकिन जब आप निरुत्साहित रहते हो, जब आपके जीवन में जो आपके इच्छा के अनुसार चीजें आगे नहीं बढ़ती, उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ही But कठिन है. Romans chapter 8 verse 28 says, and we know that all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His plan. रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उनके लिए सारी चीजें जो है भलाई के लिए काम होती है. So things began to happen the way God planned in your life. और उस समय में जो है परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने लगता है. I always love the scripture from the Psalm 100. मैं भजन संगीता 100 से बहुत प्रेम करता हूँ. You can turn towards Psalm 100 and see how beautifully it is narrated. और भजन संगीता 100 जब आप पढ़ेंगे आप देख सकते हैं किस प्रकार अच्छी कितने बेहतरीन रीति से उसको Bible रचा गया says, है. make a joyful noise unto the Lord, all ye land. और वचन कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो. Make what? Joyful noise. जो है आनंद की जो है घोषणा करो. It is not wrong to be joyful in the church. और अपने कलीसिया में खुश होना ये बहुत गलत बात नहीं है. Many of us may not be this generation, but the generation of mine are raised in a pattern when out of the church you can be joyful and you can laugh, but after entering, the moment that you enter into the church, you need to have a sorrowful face. मैं एक ऐसे पीढ़ी में जन्मा हूँ जहाँ पर कलीसिया के बाहर आप खुश कर मजे कर सकते हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो आपको बहुत ही जो है बिना हंसे हुए ऐसे एक चेहरे को पेश It's करना a है, holy place. क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है. Hallelujah. We raised in that idea. हम ऐसे एक सोच विचार में पले बड़े हैं. We cannot laugh in the church. हम कलीसिया में हंस नहीं सकते, We cannot be joyful. हम जो है खुश नहीं रह सकते. You cannot be expressive. आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. You should have very sad continent. आपको जो है आपके चेहरे को हमेशा गर्वी रखना है, हमेशा जो है दुखी रखना है. But Bible says, लेकिन वचन कहता है make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. आनंद से जो है परमेश्वर की आराधना करो, जो है सारी पृथ्वी परमेश्वर का जय God जयकार wanted to करो. know how much voice that you can raise inside the sanctuary of God. और परमेश्वर की हुजूरी में आप कितने जोर से परमेश्वर की Come आराधना on, कर just सकते start praising God. Hallelujah. हो. सारे कलीसिया परमेश्वर की Others, आराधना you करें. can do it better. You can loudly say hallelujah unto God. Hallelujah. हालेलुया. Because He loves it. क्योंकि परमेश्वर उसको पसंद करते हैं. He loves to hear the noise of His children. परमेश्वर अपने बच्चों की आराधना को सुनने में Not the पसंद है. noise of complaint, noise of murmuring. और अपने कुड़कुड़ाने की आवाज नहीं, Not the noise of hallelujah, murmuring, but God wants
the noise of victory unto him. और सिर्फ हमारे गुड़गुड़ाने की आवाज नहीं लेकिन Noise of परमेश्वर celebration. और जो है खुशी की आवाज परमेश्वर सुनना चाहते हैं. You know, Bible tells about the little girl who was 12-year-old and she died and God was coming into that house. और वचन में ऐसे एक लड़की के बारे में कहते हैं जो 12 साल की उम्र की थी और वो मर चुकी थी और परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर आते हैं. God raised the little child from the tomb. और वहां पर यीशु मसीह उस लड़की को बाहर निकालते हैं. And he was coming closer to that house. He could hear a noise. और जैसे ही वो करीब आ रहे थे वो इस आवाज को सुनते हैं. You know what? God realized and understood. There were people assigned of professional mourners. और परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उस घर में ऐसे लोगों को जो है वहां पर रखा है जो सिर्फ रोने का काम करते हैं. There was a professional mourners. वहां पे प्रोफेशनली रोने वाले लोगों को बुलाया गया था. Professionally who cries. ऐसे जो प्रोफेशनली रोने वाले लोगों को Professionally who cries bitterly. और ऐसे बुरी तरह से रोने I वाले don't know व्यक्ति. how many of you know that fact. If you go to North Karnataka, if you go to some of the area of Tamil Nadu, if you go to Andhra Pradesh, there are professional mourners. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भारत में ऐसे जगह है जहां पर प्रोफेशनली लोग सिर्फ रोने का काम करते हैं. You have to give money to them. उनको सिर्फ पैसे देने की जरूरत है They will start crying. Ayo. और वो सिर्फ रोएंगे. They will start crying bitterly. वो इतने बुरी तरह से रोएंगे. Not because their heart is broken. इसका ये अर्थ नहीं है कि वो दिल से टूटे Not हुए लोग हैं. because out of sadness. वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही दुखी Because है. you give money. क्योंकि आप उनको पैसे देते Because you हो. give something. क्योंकि आप उनको कुछ देते हो. They want to cry, cry, cry. वो सिर्फ रोने का काम करते हैं. And God is not attracted to that cry. और परमेश्वर ऐसे रोने से कभी पसंद नहीं करता. God is not attracted to those mourners. और परमेश्वर ऐसे रोने वाले को पसंद नहीं करते. But God is always attracted to the people who bring a noise in the church unto God. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो दिल से जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं, आवाज करते हैं. Hallelujah. Put our hands together, give a big clap unto God. Hallelujah. He listened to us. When you cry, when you make noise unto God, He will look at you and He will understand. Here is my child. He is crying unto me. जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में रोते हो, जब आनंद से परमेश्वर की महिमा करते हो, उस समय परमेश्वर आपको जरूर देखता है. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. And not only, it is not specially written, not only for Israelites, not only just for Jews, it is for us. यहाँ पे सिर्फ इजरायली लोगों को करने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. Verse 4 says, enter his gates with what? Thanksgiving. उसका चौथा वाक्य कहता है कि उसके फाटकों से Enter धन्यवाद, his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में जो है धन्यवाद के साथ प्रवेश करो. Never enter his gates with grumbling, complaining, questioning, murmuring. और उनके फाटकों में कभी कुड़कुड़ाए होकर या फिर उनके खिलाफ कुछ कहकर वहां पर रोकर नहीं जाना When है. God wakes you up in the morning, जब परमेश्वर आपको सवेरे जगाता है, ask the Lord, as I'm going to the church, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, deal with my emotion, Lord. मेरे हालतों से आप जो है काम Deal करो, with my body. मेरे शरीर से आप काम Deal करो, with my illness. मेरे अंदर की सारी Deal चीजों से with आप my काम, sickness. मेरी बीमारियों को से आप Deal सामना with my करो, family. मेरे परिवार के साथ आप Deal रहो, with my relationship. मेरे जो है रिश्ते के Deal साथ आप with रहो, my struggles. मेरे मुसीबत के साथ आप रहो. And as you come, thank you, Lord, for the struggle. Thank you, Lord, for the sickness. Thank you, Lord, for the circumstances. And I strongly believe the Holy Spirit will start ministering unto you. And you will certainly will see God moving and you will be get healed in Jesus' name. जब अपने बुरी हालतों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हो, तब आप पवित्र आत्मा का जो आपके बीच में काम करते हो आप पेश करोगे. Now the gates is shut. अब आपके फाटके जो है वहां पर The बंद चुके हैं, court is shut. वहां पर वो दरवाजे बंद हैं. But the moment when you start giving thanks, gates automatically will open for you to enter into the courts. चाहे वो दरवाजे कितने भी बंद क्यों ना हो, जैसे आपकी आराधना शुरू होती है वो फाटके आपके लिए खुल जाएंगे. Hallelujah. The things which are closed, hallelujah, hindering you to standing as an obstacle will be removed when you start giving thanks unto the Almighty God.
जो भी चीज आपके सामने बंद खड़ी है, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करते हो, वो सारी चीजें आपके लिए खुलना शुरू होती I want to prophetically want to say into you, to some life today, hallelujah, everything which seems closed, hallelujah, God will open it and the stones will be rolled away when you give thanks unto Him. मैं भविष्यवाणी के तौर पर जो है कुछ जीवनों से इस सवेरे के समय बात करना चाहता हूँ कि चाहे आप एक बंद दरवाजे के सामने खड़े क्यों ना हो, speak to God, speak to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Make a noise, make a noise, make a noise. Church, make a noise. Church, make a noise. They say thank you, say thank you, say thank you for every circumstances. And I want to see God is moving today. Hallelujah, you are not alone, my dear friends. You are not alone. God is with you. God will make His face shine upon you. परमेश्वर जो है अपने चेहरे को जो है आपके खिलाफ जो है रोशनी से जो है उसको खुश करेंगे. Do not be worried. Whether you are standing in a valley or in a mountain, God is ever present everywhere. चाहे आप अपने जीवन के एकदम नीचे स्थल में या फिर ऊंचाई में खड़े क्यों ना हो, जहां पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो. Gates will be opened when you start giving thanks unto Him. जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, दरवाजे आपके लिए खुलते रहेंगे. This is the secret, my dear friends of God. और यही परमेश्वर का रहस्य है. This is the principle, my dear friend. और यही सीख है परमेश्वर. This is the only law that can, hallelujah, work in your life. और यही नियम है जो परमेश्वर आपके बीच में काम कर सकते हैं. Because your tomorrow, He is in God's hand. क्योंकि आपका कल वो परमेश्वर के हाथों में है. Hallelujah. Oh, clap your hands and speak loudly to God. Hallelujah. Put your hands together. Give thanks, thanks, thanks. Thanks for my relationship. Thank you, Lord, for the family. Thank you, Lord, for the job. Thank you, Lord, for the circumstances that I'm going through. I know that you are there. I know and 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 I know your presence is real in everywhere. Hallelujah. 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 You want to see gates are opened? आपको अपने बंद दरवाजे खोलते हुए देखना है. You want to see courts being opening unto you? क्या आप देखना चाहते हैं कि वो बंद फाटके जो आपके लिए खुल रहे With हैं? one principle, enter into the gates. सिर्फ एक नियम से वो खुल सकते हैं, वो है परमेश्वर के साथ फाटकों में धन्यवाद के Thank you, साथ. Lord. सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर कर. Just thank you, Lord. सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर कर. Hallelujah. हालेलुया. I want to thank God for every season. मैं परमेश्वर के लिए सारे मौसम का धन्यवाद करना I चाहता हूँ. want to thank God for all my situations. मैं अपने सारे हालातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना I चाहता हूँ. want to thank the Lord for all the difficulties that I'm going through. सारी कठिनाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मैं गुजर Gates रहा हूँ. will not ever be shut before you. It will open. It will open. It will open. It will open. 2024. Your eyes will behold the glory of God, and you will see miracle happening right in front of your eyes. Hallelujah! You receive it by thanking God. Hallelujah! वो बंद फाट के हमेशा बंद नहीं रहने वाले, लेकिन ये साल वो साल होगा जो ऐसे बंद चीजों को आप खुलते हुए देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. Enter His gates with thanksgiving. उनके फाटकों में जो है आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ उनके सामने. 1 Thessalonians chapter 5:18 says, give thanks in everything. पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय इस प्रकार कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, It is the will of God क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की परमेश्वर की यही for इच्छा है. you in Christ Jesus. तुम्हारे लिए यीशु मसीह में. Hallelujah. हालेलुया. Let us close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करेंगे. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Lord, we bring ourselves before you. मैं अपने आप को आपके सामने ले आता हूँ. Thank you, Lord, for speaking to our hearts this morning. हमारे दिलों से बात करने के लिए आपकी धन्यवाद करते हैं. Help us, O God, to give thanks in every circumstance. परमेश्वर सभी हालातों में आपका धन्यवाद करने के लिए हमें मदद करो. Because we know it is the spiritual weapon
क्योंकि हम जानते through हैं which you can open the gates. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो एक आत्मिक हस्त्र है जिससे हम बंद फाटकों को खोल सकते हैं। I pray for the people and the families and individuals here today. I pray as they begin to give praise and as they begin to give thanks unto God, may this season will be a season of miracle unto them, O Lord. परमेश्वर यहाँ पे बैठे सारे व्यक्ति जन सारे परिवार लोग जो है I ये मौसम के लिए speak divine healing to come upon their lives. मैं उनके जीवन में जो है चंगाई को प्रार्थना I करता हूँ। speak the gates to be open right in their मैं eyes. प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आंखों के सामने वो फाटके उनके लिए खुलने पाए। Oh, I pray, oh God, that they will be victorious in everything because of you, O Lord. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके द्वारा जो है उनके जीवन में जयवंत हालातों को वो महसूस करने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We want to thank you. हम आपका धन्यवाद We करना want to चाहते हैं। thank you. हम आपका धन्यवाद We करना want चाहते to say it louder. Thank you, Lord Jesus. हैं। थैंक यू परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। Thank you for hearing our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को In सुनने के लिए धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. Thank you.